अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू में मीर तकी मीर की जो गज़ल है वो पढ़ेंगे। और चूँकि मीर तकी मीर ने आपकी दरसी किताब में जो गज़ल लिखी है उसके दो हिस्से हैं, गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2। आज हम गज़ल नंबर 1 पढ़ेंगे, तो उसके बाद उसकी उन अशार की तशरीह भी करेंगे। तो सबसे पहले हम गज़ल नंबर 1 पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखी हुई है। तो गज़ल नंबर 1 में जो शेर मीर तकी मीर ने यहाँ पर कलमबंद किए हैं वो है: हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया, दिल सितमज़दा को हमने थाम थाम लिया। वो कंज रोश न मिला रास्ती में मुझसे कबू, नसीदी तरह से उनने मेरा सलाम लिया। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। अगरचे गोशे गुज़ी हूँ मैं शायरों में मीर, पर मेरे शायर ने रोए ज़मीन तमाम लिया। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम कोशिश करेंगे इन अशार की तशरीह करने की। तो सबसे पहले पहला शेर जो है: हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया है, दिल सितमज़दा को हमने थाम थाम लिया। पहले हम इस शेर में मुश्किल अल्फाज जो है इनको यहाँ पर कलम बंद करेंगे। मसलन यहाँ पर लिखा है सबसे पहले तेरा। तेरा माने है तेरा। इसी तरह है कसो। कसो का माने है किसी। इसी तरह इस शेर में दिले सितमज़दा। दिले सितमज़दा इसका माने है जिस दिल पर तुम सितम, तुमने सितम ढाया। सितम ढाया। हाँ, इसी तरह यहाँ पर थाम लिया इस शेर में है। थाम लिया का माने है पकड़ा या रोका। तो इस तरह से ये मुश्किल अल्फाज हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब हम इसकी तशरीह इस तरह से करेंगे। सबसे पहले जब हम तशरीह किसी भी शेर की करेंगे तो सबसे पहले हमें इस शायर का हवाला भी देना होता है और उस नज़म का हवाला भी देना होता है। तो इसके बाद हम शेर की तशरीह करते हैं। तो इसमें हम तशरीह में लिखेंगे, तशरीह यानी नंबर 1 है। तो इसमें हम लिखेंगे मीर तकी मीर, क्योंकि मीर तकी मीर की गज़ल है ये। अपने गज़ल नंबर 1 के इस पहले शेर में फरमाते हैं कि मेरे सामने पर कोई मेरे महबूब का नाम, मेरे महबूब का नाम लेता है तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है। तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है और मैं महबूब का दीदार करने और इससे मिलने के लिए बेताब हो जाता हूँ। हो जाता हूँ और बड़ी मुश्किल से दिल पर काबू पाता हूँ। और बड़ी मुश्किल से दिल पर काबू पाता हूँ।
تو اس طرح سے جب ہمیں کسی بھی شاعر کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو پہلے ہم شاعر کا حوالہ دیتے ہیں، نظم کا حوالہ دیتے ہیں، بعد میں جو یہ ہم نے سب سے پہلے یہ مشکل الفاظ کو آسان کیا ہے، آسان اردو میں لکھا ہے، ان کو استعمال کر کے اس شعر کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ مثلا شعر جو تھا ہمارے پاس، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا ہے، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا ہے۔ یعنی میر تقی میر اپنے غزل نمبر 1 کے اس پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب کوئی میرے محبوب کا نام لیتا ہے، یعنی میرے سامنے جب کوئی محبوب کا نام لیتا ہے تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور میں محبوب کا دیدار کرنے اور اسے ملنے کے لیے بےتاب ہوتا ہوں، اور بڑی مشکل سے دل پر قابو پاتا ہوں، میں بڑی مشکل سے بعد میں اپنے دل پر قابو پاتا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ پہلے شعر کا تشریح ہوا۔ دوسرا شعر ہمارے پاس جو غزل نمبر 1 کا ہے، وہ کنج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، یہ تھا پہلے شعر کا۔ اب ہم دوسرا لیں گے تو اس میں لکھا ہے کنج روش۔ کنج روش ہم دیکھیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ کنج روش کا معنی ہے ٹیڑھی راہ چلنے والا، ٹیڑھی راہ چلنے والا، یا ہم اس کو کہیں گے بے وفا بھی۔ راستی معنی ہے سیدھے طریقے سے، سیدھے طریقے سے، سچائی یا ایمانداری بھی ہم اس کو کہیں گے، ایمانداری۔ تو جب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے تو ہم اس کی تشریح میں لکھیں گے، یہ دوسری تشریح ہے۔ میر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کہ میرا محبوب کبھی بھی مجھ سے سیدھی طرح پیش نہیں آتا ہے، سیدھی طرح پیش نہیں آتا ہے۔ میرا محبوب اتنا مغرور ہے، میرا محبوب اتنا مغرور ہے، مغرور معنی گھمنڈ، اتنا مغرور ہے کہ وہ کبھی خوش اسلوبی سے میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ یعنی کہ شاعر فرماتا ہے دوسرے شعر میں، یعنی کہ شعر وہ ہے، وہ کنج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ تو شاعر یعنی میر تقی میر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرا محبوب کبھی مجھ سے سیدھی طرح پیش نہیں آتا ہے، وہ سیدھی طرح میرے سے بات نہیں کرتا ہے۔ میرا محبوب اتنا مغرور ہے، اس میں اتنا گھمنڈ ہے کہ وہ کبھی خوش اسلوبی سے میرے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح ہم تیسرا شعر لیں گے۔ تیسرا شعر ہے میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ تو اس شعر میں اس تیسرے شعر میں جو تیسرا شعر ہے، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ یعنی سلیقہ معنی ہے تمیز، طور طریقہ، تمیز یا طور
तरीका। इसी तरह निबी, निबी का माने है कामयाबी हुई। तो इस तरह से जब हम इस शेर की तशरीह करेंगे, शायर मीर तकी मीर इस शेर में फरमाते हैं कि मोहब्बत में यूं तो मैंने उम्र भर नाकामियां और महरूमियां ही देखी है। यानी मैंने मोहब्बत में तमाम उम्र नाकामियां और महरूमियां ही देखी हैं। अलबत्ता मैंने मोहब्बत निभाई, इसके बावजूद मैंने मोहब्बत निभाई और इस रास्ते में अपने कदम डगमगाए नहीं। ऐसा मेरे बेहतरीन सलीके से मुमकिन हो सका। गोया मोहब्बत में मेरा सलीका काम आया, या मेरा तरीका काम आया, मेरा मुकद्दर नहीं। हाँ, मुकद्दर में तो नाकामियां, महरूमियां और नाउम्मीदियां ही लिखी हैं, ये जो तीसरा शेर था, ये एक वसी शेर है। यानी कि इसमें शायर यानी मीर तकी मीर फरमाते हैं कि मोहब्बत में यूं तो मैंने उम्र भर नाकामियां और महरूमियां देखी। यानी जो मैंने अपने महबूब के साथ जो मैंने मोहब्बत की, उस मोहब्बत के बदले में मैंने उम्र भर नाकामियां और महरूमियां ही देखी। अलबत्ता मैंने मोहब्बत निभाई, इसके बावजूद मैंने अपनी तरफ से माशूक यानी कि महबूब के तईं अपनी मोहब्बत निभाई है और इस रास्ते में अपने कदम डगमगाए नहीं। यानी मैं पीछे नहीं हटा, मोहब्बत करने से, अपने महबूब को मोहब्बत करने से मैं पीछे नहीं हटा। ऐसा मेरे बेहतरीन सलीके से मुमकिन है। ये जो मेरा तौर तरीका था, सलीका था, इससे ये मुमकिन हुआ। गोया मोहब्बत, इस तरह से हम ये कहेंगे कि गोया मोहब्बत में मेरा सलीका काम आया, मेरा तौर तरीका यही मेरे इस मोहब्बत में काम आया, वरना जो मेरा मुकद्दर था उसमें सिर्फ नाकामियां, महरूमियां और नाउम्मीदियां ही लिखी हैं। इस तरह से हम आखिर में इसका जो आखिरी शेर है इस गज़ल का, गज़ल नंबर 1 का, वो है अगरचे गोशे गज़ी हूँ मैं शायरों में मीर, पे मेरे शेर ने रोए ज़मीन में तमाम किया। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज है पहले हम वो लिखेंगे। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं शेर नंबर 4 में, वो है गोशा गज़ी
गोशे गजी के माने हैं तन्हाई में बैठने वाला, तन्हाई में बैठने वाला, बैठने वाला या कोने में बैठने वाला। तो इस तरह से हम इसकी जो तशरीह इस तरह से करेंगे। मीर मीर तकी मीर, तशरीह है इस तरह, मीर तकी मीर इस मक्ता शहर में, क्योंकि ये मक्ता शहर है, इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तो हम लिखेंगे मीर इस मक्ता शहर में मैं अपनी शायरी की तारीफ, अपनी शायरी की तारीफ करते हुए कहते हैं, करते हुए कहते हैं कि अगरच मैं बाकी शायरों के मुकाबले में, मैं बाकी शायरों के मुकाबले में, अगरच मैं बाकी शायरों के मुकाबले में दिखावा नहीं करता हूँ, दिखावा नहीं करता हूँ, और मैं महफिलों में ज़्यादा नहीं जाता हूँ, और मैं महफिलों में ज़्यादा नहीं जाता हूँ। तन्हाई इख्तियार करता हूँ, यानी गोशा गज़ी, तन्हाई इख्तियार करता हूँ, करता हूँ, तन्हाई इख्तियार करता हूँ, लेकिन मेरे अशार पूरी दुनिया में मकबूल है, पूरी दुनिया में मकबूल है, यानी मशहूर है। यानी इस शहर में, इस मक्ता शहर में मीर तकी मीर अपनी शायरी का तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगरचे मैं बाकी शायरों के मुकाबले में दिखावा नहीं करता हूँ, मैं बाकी शायरों के मुकाबले अपना दिखावा नहीं करता हूँ, और मैं महफिलों में ज़्यादा नहीं जाता हूँ, तन्हाई इख्तियार करता हूँ, कोने में रहता हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं निकलता हूँ महफिलों में, लेकिन फिर भी मेरे अशार पूरे दुनिया में मकबूल है। गो कि मीर तकी मीर इस गज़ल नंबर 1 के आखिरी शेर में अपनी शायरी का तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगरचे मैं बाकी शायरों के मुकाबले में ज़्यादा बाहर नहीं निकलता हूँ, फिर भी मेरे शायर पूरी दुनिया में मकबूल है, मशहूर है। तो प्यारे बच्चों, ये था तशरीह इस पहले गज़ल का जो मीर तकी मीर ने लिखी है। तो इंशाल्लाह अगले सबक में हम इसके आगे जो दूसरी गज़ल है उसकी तशरीह करेंगे। बाकी वसल्लम, शुक्रिया।